नो प्लीज, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि व्हाई डू वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई डू वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज देयर इज अ बेसिक assumption it shall be performed. It is never entered into with an intention that I shall commit the breach of this unless there is some bad intention behind that. Getting point? So there should be some rules regarding that कि in case of breach, whether it is intentional or unintentional, what should be the remedy for the party who is victim of that breach of the contract. समझ रहे हैं बात कि उस पार्टी को जिसका कोई दोष नहीं है, अगर किसी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उस अपने प्रॉमिस से पीछे हटी है वो, तो वेदर इट इज आउट ऑफ कंपल्शन, चाहे उसे कोई कॉमर्शियल दिक्कतें हो, इंटेंशनल हो, वट एवर इट मे बी, वी आर नॉट गोइंग इन टू द माइंड कि गिल्टी माइंड था, इनोसेंट था, वी डोंट सी लाइक दैट इन द सिविल लायबिलिटी. In case of breach of contract, we don't go into the mens rea. Likewise, we do in the criminal cases. Whatever it may be, whether you have committed the breach of or not, it is to be seen only. Breach हुआ, आपकी liability fix हो गई. So, breach के बाद में जो damages हैं, जिनको हम लोग liquidated damages बोलते हैं, उनका लेवल क्या होगा, उनका मेजरमेंट क्या होगा, कितना damages एक victim party को मिलना चाहिए, उसके regarding what are the rules? Those that law is dealt in section 73 and 74. हो जाएगा? तो please come to this first line. This is very important for your prelims. Section 73 and 74 of the Indian Contract Act contains rules regarding the remedy of damages which is available on the breach of contract. This is the question, first question for your prelims. 73 and 74, generally they asked the sections in your exam. So this is breach of contract. If there is a breach of contract, there will be damages, and the damages के लिए remedy कहाँ मिलेगी आपको? 73 and 74 में. ठीक है, बढ़े आगे. Now, so we should begin with the section now 73. Very very important for you. So please see this. When a contract has been broken, please highlight this section as it is. When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby. Number one, which ये दो कैटेगरी है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो जो विक्टिम पार्टी है, who suffers the loss, that party is entitled to receive compensation from other party naturally. But what kind of? That is important. These are the two kind of, red line and yellow line. There are two category of compensation or damages which can be claimed by the victim party, the party suffering. जिस पार्टी ने सफर किया है because of that breach of contract, वो दो प्रकार के compensation receive करने की अधिकारी है. कौन से दो प्रकार हो गए आपके? ये पहला क्या है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं आपके लिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए. आप ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए. पहला, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच. उस ब्रीच से जो सामान्यतः, जो नेचुरली जो लॉसेस हुए वो आपको मिलेंगे. आप समझ रहे बात? वर्ड क्या यूज किया उन्होंने? इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच विच नेचुरली अरोज, जो प्राकृतिक रूप से उसमें ऐसे ब्रीच से लॉसेस होंगे, वो आप इसका कोई नहीं फिक्स नहीं किया गया यहां पर. आप देखो, आप ये बहुत टेक्निकल लाइन है ये सारी, ये कि उस ब्रीच से जो लॉस हुआ उसके मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो पहला रूल ये है जो फॉर डिटरमाइनिंग द डैमेजेस, दैट द डैमेजेस विच नेचुरली अरोज, इट मींस नो स्पेशल डैमेज, जिस उससे आपको लग सकता है कि कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उस तथ्य, उस केस के फैक्ट्स को देखते हुए जो ये माना जा सकता है कि इसमें ये लॉस होगा, वो लॉसेस का उसको भरपाई की जाएगी. किसको? द पार्टी हु इज सफरिंग. कौन भरपाई करेगी? द पार्टी हु इज मेकिंग द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द फर्स्ट ब्रांच. कर लेंगे, हो जाएगा. Now come to second.
which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. These are called special damages. क्या? Special damages. तो इस सेकंड कैटेगरी क्या है कि या तो पहले वाले में क्या हुआ जो नेचुरली अरोज हुए, सेकंड में क्या है कि जिनकी पार्टी को जानकारी थी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस जो पार्टी सफरर है उसको वैसा लॉस होगा, which the parties knew. प्लीज इन शब्दों को देखिए आप लोग. पार्टीज न्यू, जिन लॉसेस की पार्टीज को जानकारी थी, विच द पार्टीज न्यू कब? एट द टाइम व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो नाउ while determining the damages, quantum of damages, while determining the quantum of damages, what we will have to see, whether the parties were in the knowledge of some kind of special damages, or if it is not so, then the party suffering is entitled only for the losses which naturally arose in the usual course of things. Now please go to illustration G. This is very simple for you. A contracts, to understand this, A contracts to let his ship to be for a year from the 1st of January for a certain price. Who contracts? A. A contracts to let his ship to B. B को अपना शिप लीज पे देने के लिए A एक कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन A एंड B. और कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स क्या हैं कि वो अपने जहाज को, पानी के जहाज को, उसको लीज पर दे रहा है, लेट कर रहा है, किराए पे दे रहा है 1 साल के लिए, जनवरी से. ठीक है. नाउ फ्राइड राइज, जो एग्रीड प्राइस था उससे अब उसके जो कीमतें हैं, किराया है, उसका किराया फ्राइड बढ़ जाता है. एंड ऑन द 1st of January, जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी, द हायर ऑब्टेनेबल फॉर द शिप इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. अब जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए उससे जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना भी रेट था, 1000 था, 10,000 था, उससे अब उस जनवरी तक आते थे, रेट अब बढ़ गया. गॉट इट और नॉट? सही है. ए ब्रेक्स हिज प्रॉमिस. अब ए ने उसका अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. समझे आप? ए और बी में हु इज ब्रीचिंग, हु इज कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ए. ही मस्ट पे टू बी बाय वे ऑफ कंपनसेशन ए सम इक्वल टू द डिफरेंस. वेरी कॉमन, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे आप. Difference between contract price and the price for which B could hire a similar ship for a year on and from the 1st of January. नहीं समझे इस बात को? नहीं समझे ना? देखिए, 10,000 रुपए साल के किराए पे मैंने लिया. सही है. जब मैं अपना जहाज आपको 10,000 रुपए के साल के किराए पे दे रहा था, और ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होना था 1 तारीख को. अब 1 तारीख को उसके जो रेट है अब हो गए 15,000 रुपए. मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था कि मैं भी किराए पे नहीं दूंगा अब आपको, बट आपको शिप की जरूरत है, तो अब आपको उस समय जो रेट पर आपको लेना पड़ेगा, क्या रेट हुआ वो? 15,000 रुपए. तो ये जो डिफरेंस हुआ, 15,000 माइनस 10,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10,000 एंड द प्राइस फॉर विच बी कुड हायर ए सिमिलर, यानी 15,000. उसके डिफरेंस का कंपनसेशन उसको मिलेगा, बिकॉज दिस इज नेचुरली अरोज इन द कोर्स ऑफ टीचर. ये जो लाइन है आपकी लैंग्वेज है, सी, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच. तो व्हाट वाज द लॉस सफर्ड बाय द बी? नेचुरली दिस वाज द लॉस ऑफ 5,000. That is the difference between the contract price and he had to pay actually now. Why he had to pay? Because of the breach of the contract. Had he not breached the contract, he would have got that only for 10,000 rupees. So this comes into the first category. You got it? Naturally, क्या समझ में आई बात अब? Now please come to the this illustration K. K. A contracts with B to make and deliver to B by a fixed day for a specified price a certain piece of machinery. किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? ए और बी के बीच में. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? डिलीवरी ऑफ मशीनरी.
एक स्पेसिफाइड डेट पर, फिक्स डेट पर, उस खास दिन पर, उस खास डेट पर, उस खास प्राइस पर आई विल डिलीवर ए मशीनरी टू यू. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. गॉट इट? ठीक है. नाउ ओहो कुछ रह गया इस पे, मिनट. आपके नोट्स देंगे ना मुझे एक बार? नहीं ठीक है ओके ओके समझ में. हाँ जी सॉरी, हो जाता है कई बार ब्रेक करने के चक्कर में. ठीक. So this is the contract of delivery of machinery on a fixed date on fixed price. But A does not deliver the piece of machinery at the time specified. So he commits breach. Who is committing breach? A. Now who will be entitled to receive the compensation? B. Now question ये है कि उसके consequences क्या क्या मिलना चाहिए. Now in consequence of this, B obliged to procure another at a higher price than that of which he was have to pay. अब मशीनरी आपने नहीं दी, बी ने को नहीं मिली, तो बी कहीं और से लेगा, लेकिन नाउ इट इज एट द हायर प्राइस. गॉट इट? नाउ सेकंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, कॉन्ट्रैक्ट विच बी हैड मेड विद ए थर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विद ए. बिकॉज आई वॉज इन द इंप्रेशन यू विल परफॉर्म माई कॉन्ट्रैक्ट, you will deliver my machinery. In that impression I had also made a contract with third person. now अब थोड़ा ये टेक्निकल हो गया पहले वाले से ज्यादा. सही है. तो एक तो मुझे एक सफर क्या करना पड़ा. पहली सफरिंग क्या होगी, मेरा आपने मशीनरी उस प्राइस पे नहीं दी, मुझे मशीनरी अब हायर प्राइस पे लेनी पड़ेगी. सेकंडली मैंने जो एग्रीमेंट किसी और व्यक्ति से कर रखा था, नाउ उसमें क्या करना पड़ा है, एंड इज कंपेल्ड टू मेक कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज मैं उस थर्ड पार्टी से जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, मुझे उसको भी कंपनसेट करना पड़ रहा है. आप समझ रहे हैं बात? अभी आपने मशीनरी देनी थी 10,000 रुपीज में, मुझे आपने नहीं दी, मुझे वो 15,000 में खरीदनी पड़ी, हायर प्राइस हो गया. ठीक है. सेकेंडली मैंने आपके बेस पर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैं आपके बेस से परफॉर्म नहीं कर पाया, और मुझे उसको क्योंकि मैंने ब्रीच कर दिया कुआ दैट थर्ड पार्टी, इसलिए मुझे उसे कंपनसेट करना पड़ा. लेकिन ये जो फैक्ट है, ये एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी बट विच हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू ए को मैंने नहीं बताया था कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से कर रखा है. दिस वाज नॉट इन हिज नॉलेज. आई एम कमिंग टू दैट लाइन. आप समझ रहे? देखिए लाइन उस पर आइए. दिस वाज विच, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं, विच द पार्टीज न्यू. द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन ए एंड बी, बट A was not knowing that B had entered into any kind of contract with third party. है ना? तो this was not in the knowledge of this. अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो पार्टी सफरिंग है वो क्या डिमांड कर रही है कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ हायर प्राइस ऑफ मशीनरी. सेकेंडली बिकॉज ऑफ योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई हैड टू कंपनसेट समवन एल्स, मुझे वही मिलना चाहिए. लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी हो गई कंपनसेशन फॉर द थर्ड पार्टी, वो क्या हुआ, स्पेशल डैमेजेस हो गया. एंड बिकॉज बोथ पार्टीज वर, उनकी नॉलेज में नहीं डाला गया था पहले, इसलिए उसको सेकंड वाला जो है वो नहीं मिलेगा. पढ़ लेते हैं दोबारा. दिस वॉज के. A must pay to B by way of compensation the difference between the contract price of the price of machinery and the sum paid by the another. Okay? But not the sum paid by B to third person by way of compensation. समझ में आई बात आपको कि कंपनसेशन के लिए उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. समझ में आई आपको? क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जो फैक्ट, जो जानकारी थी कि भाई उसने किसी तीसरे व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसको जो पार्टी मेकिंग थी उसकी नॉलेज में नहीं थी बात ये. देयरफॉर दैट पार्टी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव दैट काइंड ऑफ कंपनसेशन, स्पेशल डैमेजेस का. ये बात किनको लोग समझ में आ चुकी? प्लीज रेज हैंड. सबको आ चुकी? तो शैल आई प्रोसीड नाउ? नाउ प्लीज see the illustration B also. मैम आपको ना थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, या तो कोई जो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए कहीं है ना, या फिर मेरे सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मुझे पता क्या क्या पूछेंगे आप. थोड़ा कहने के लिख लीजिए क्वेश्चंस आपको. प्लीज गो टू बी, इलस्ट्रेशन बी.
आपके नोट्स में होगा, इलस्ट्रेशन भी है, जरा देखो क्या है। ए हायर्स बी शिप टू गो टू बॉम्बे, बी का शिप लिया कहां जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए। एंड देयर टेक्स ऑन बोर्ड ऑन 1st of January ए कार्गो टू ब्रिंग इट टू कैलकाटा। मुझे कार्गो कहां लेकर आना है, कैलकाटा लेकर आना है। एंड द फ्राइट टू बी पेड व्हेन अर्न, जब जो आ जाएगा तब मैं उसका किराया दूंगा आपको। बीस शिप डज नॉट गो टू बॉम्बे, बॉम्बे जाता ही नहीं है। ए ने क्या किया, बी के शिप को किराए पे लिया कि तुम बॉम्बे जाओ, वहां से मेरा कार्गो लेकर के तुम्हें कहां लेकर के आना है, कैलकाटा लेकर के आना है। सही है, लेकिन बी का शिप डजंट गो टू दी बॉम्बे, दैट इज व्हाई इट मींस व्हाट, ही बी कमिट्स द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ बट ए हैज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोक्योरिंग suitable conveyance for the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. What? कि लेकिन ए के पास अपॉर्चुनिटी है अब यहां पर कि उन्हीं टर्म्स पर, जिन टर्म्स पर मैंने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्हीं टर्म्स पर मुझे फिर दूसरा शिप मिल रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं मैं आई वाज इन द डिसएडवांटेजेस पोजीशन, मुझे ज्यादा प्राइस पेमेंट करना पड़ रहा है। एक में हमने क्या देखा कि मुझे थर्ड पार्टी का लॉस सस्टेन करना पड़ा, बट दैट वाज नॉट इन द नॉलेज, देयरफॉर अदर पार्टी वाज नॉट बाउंड टू पे दैट कंपनसेशन। नाउ इन दिस केस, even though one party is committing breach, but I am getting the same advantageous contract with someone else at the on the date of performance of the contract. इसमें समझे क्यों अंतर है इसमें? Now A avails himself to those opportunities but is put to trouble and expense in doing so. मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन क्या अंतर हुआ, मुझे कुछ ट्रबल हुआ, कुछ मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए। सही है, सो ए इज एंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंस ओनली। जो ट्रबल हुआ, जो एक्सपेंसेस हुए, आई एम एंटाइटल्ड एज ए पार्टी सफर फ्रॉम योर ब्रीच ओनली फॉर दोज ट्रबल्स एंड एक्सपेंसेस। आई होप कि नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फर्स्ट रूल कि क्या है एग्जैक्टली ये। अब आई अगेन रीड दैट रूल फॉर यू। This is which naturally arose in the usual course of things from such breach. Now I have read 3 illustrations to illustrate all these things. आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? सबको आ गया कि पहला, अब आपने प्लिम्स के लिए क्या करना है, प्लिम्स के लिए क्या करना है कि इन इलस्ट्रेशंस की, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पर इस सेक्शन 73 में काफी ज्यादा इलस्ट्रेशंस हैं, आपको अपने माइंड में इनकी कहीं ना कहीं कोई इमेज बनानी पड़ेगी, वीडियो क्लिप बनानी पड़ेगी छोटी सी। जैसे ए एंड बी शिप की हायरिंग, दे आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ए एंड बी, अच्छा मेरा कार्गो है वहाँ पर, बॉम्बे में सामान पड़ा हुआ है, उसको लाना था, वो फोन नहीं ला पा रहा। इस तरीके से आपको एक्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, और यही एक ट्रिक है कि आप इन इलस्ट्रेशन को कैसे देर तक अपने इस मेमोरी में रख सकते हैं इसको। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर ये जो क्लिप्स हैं बार बार वैसे इमेजिन करेंगे तो आपको लॉ याद हो जाएगा, अदरवाइज इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में घुस जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, ए और बी हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट, कहां पड़ा है सामान, इमेजिन करा बॉम्बे में सामान पड़ा नहीं करा, ओफो क्या करूं, और फिर ओहो मिल गया, सेम एडवांटेज, सामान लेके जा रहे हैं, एक्सपेंसेस दिस दैट, देन क्या मिल रहा है हाथ में, केवल ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस, लाइक दिस। आई होप मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रही बातें सारी, बढ़े आगे। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ कम टू दिस, which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. जो पार्टीज जानती थी कि उसको ऐसा होगा, and we call it as the special damages. You can claim the special damages only when it was in the contemplation of the parties. Technically we say like this. या जो बेरेट की लैंग्वेज है, when the parties knew. And to understand this, please go to illustration L. A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January. This is the date of performance, 1st of January. What is the contract? Who is A? A is a builder. He contracts for what? For erecting and finishing a house by that date. This is his promise on his part. Okay.
in order that B may give his possession, B may give possession of it at that time to C to whom B has contract to let it. ताकि जो B है जिसने कि C से कॉन्ट्रैक्ट किया है किराए पे देने के लिए, 1 जनवरी को आप मेरा मकान दे देंगे तैयार करके, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया C से कि मैं इसको C को किराए पे चढ़ा दूंगा। सही भाई बात? तो जो B है, B के 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है A के साथ, बिल्डर के साथ, आप मेरा मकान बना के दोगे। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया C से कि मैं आपको किराए पे दे दूंगा। सही है? To whom B has contracted to let it. You got it? Now this is very important. This red line is very important for you, and you will have to see while in your exams whether it is prelims or it is mains, कि whether such kind of line is not. A is informed of the contract between B and C. Now the builder is in the knowledge that B has made such and such contract with C. बिल्डर को पता है कि भाई मुझे मकान बना के देना है क्योंकि इन्होंने C से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किराए के लिए। सही है बात? तो अब आप समझ रहे कनेक्ट किससे कर रहा हूं मैं? सेक्शन 73 का जो सेकंड रूल है, when the parties knew, now the parties in this illustration knew, A and B both knew now. A knew कि भाई अगर मैंने ब्रीच किया तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। समझ में आई बात? नाउ A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down. वो इतना बेकार घर बनाता है कि 1 जनवरी से पहले वो गिर जाता है, ढह जाता है। Now and B has to be rebuilt by B. B को उस मकान को दोबारा बनाना पड़ता है। Who in consequence loses the rent which he was to have received from C and is obliged to make compensation to C for the breach of his contract. अब तो 3 लॉसेस हो गए इसको। टू whom? टू B. पहली बात घर दोबारा बनाना पड़ा, सेकंड बात रेंट का लॉस हुआ, और थर्ड जो जिसको टेनेंट था उसको मुझे कंपनसेट करना पड़ा। समझ बात आपको? अगर ये नॉलेज में नहीं होता तो फर्स्ट रूल अप्लाई होता तो फिर क्या मिलता? केवल लॉसेस मिलते कि जो मकान की वजह से ढहने की वजह से मिले लॉसेस हुए इसको। नाउ A must make compensation to B what? For the cost of rebuilding. This is a natural rule, naturally arose. Okay. The rent loss and for the compensation made to C. तो ये जो दो लास्ट की कैटेगरी हैं for the rent, I give them color now. For the rent loss and for the compensation made to C, these are the special damages which were awarded only. Why? Because these were in the knowledge of A from that at the date of making of the contract. कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन किया गया था उसी डेट पर A की नॉलेज में था। If I commit the breach, such and such kind of losses may be incurred by the other party. So therefore 73 का सेकंड रूल अप्लाई यहां पर हो जाएगा। नहीं आई मैसेज में? नहीं आई? आ गई। ओके, सो दिस इज दिस सेकंड रूल। तो दिस इज, अब आपको प्रीलिम्स में क्या करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आए ज्यादा मत सोचना, तुरंत ए या बी मार देना या ढंग से पढ़ेंगे उसको। प्लीज बी केयरफुल, रीड केयरफुली कि whether the parties were in the knowledge, whether they were informed, whether first rule will be applicable or second rule will be applicable in this case. Again say, I am bound to say, आपको जगाना पड़ता है बार बार, 99% aspirants fail because of lack of revision and thus because of not of good reading questions. आता है सब ठीक है, लेकिन क्या बस फन्ने कहाँ बनेंगे, अच्छा ये टिक, अब पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या अंतर था, कहाँ एग्जामिनर साहब ने घुमा दिया उसको, जोर का झटका, कैसे लगे, धीरे से, वो बाद में आके बड़ा जोर का लगता है जब रिजल्ट आता है। देखो, अगर इंसान 10-15 नंबर से फेल होता है तो उसको सुकून हो जाता है ना, लेकिन अगर बॉर्डर लाइन पर अगर फेल होता है तो बहुत बुरा लगता है ना, और खासकर जब इंसान का सिलेक्शन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जैसा मुझे लगा था। इवन इन दैट मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तब तो बहुत बुरा लगता है।
तो प्लीज ऐसी कंडीशन के साथ आए ना, तो दो ही रूल है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एंड सेकंड रूल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। थर्ड रूल कहीं ना कहीं बना सकते हैं, केयरफुल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्या पूछा है, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है उसमें। तो ये जो जैसे लाइन है, रेड लाइन, ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, पार्टीज वर इन द नॉलेज ऑफ दैट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और नोट, यू विल हैव टू फाइंड दिस। सही है, कर लेंगे। और कुछ एकदम घोर आलसी छात्रों के लिए बता रहा हूं, कुछ नहीं करना जिनको, तो कम से कम इन इलस्ट्रेशन को 4-5 बार पढ़ के ढंग से समझ रट लीजिए इनको, ये वैसा ज्यादा दिमाग लगाने मन नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपके इन्हीं इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे। ज्यादा बियॉन्ड, एग्जामिनर साहब भी इतनी मेहनत करना नहीं चाहते कि ठीक है इनमें से ए में से बी में से कोई ना कोई चिपकाओ और इनसे पूछ लो, जिसने रट रखे होंगे वो कर लेगा। सो दिस इज फॉर दैट। नेक्स्ट पढ़े आगे। सो दिस इज एल, नाउ कम टू अगेन this is, please go to J, I and J. First let's see I. What is I? A delivers to B a common carrier. A delivers to B a B is what? A common carrier, a machine to be conveyed without delay to A's mill. मैं A हूं, B को मैंने जो कि कोरियर है उसको कहा कह रहे कि भाई मेरी जो मशीन है ये आप मेरी मिल तक पहुंचा देना। समझ में आता है? इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल इज स्टॉप फॉर वांट ऑफ मशीन, और मैं आपको बता रहा हूं भाई इस मशीन की वजह से मेरी मिल बंद पड़ी हुई है। गॉट इट? नाउ दिस इज अगेन नॉलेज। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू नाउ कि बिकॉज ऑफ दिस मशीन माई मिल इज स्टॉप्ड, it should be in your knowledge now at the time of making a contract. Got it? हाँ जी, जो सो रहे हैं वो भी देखते रहे भाई। B unreasonably delays the delivery of the machine, this is a breach. B unreasonably delays the delivery of the machine, मशीन की डिलीवरी लेट कर दी गई, यानी कि ये क्या हुआ, ब्रीच, कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, and in consequence A loses a profitable contract with the government. अब क्योंकि मेरी मशीन नहीं आई, मेरी मिल चली नहीं, इसलिए मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट से, I missed that contract. समझ आई बात आपको? तो दिस इज व्हाट लॉसेस द, मैं इसको अलग कलर करता हूं आपके देखने के लिए, ये लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया मेरा उसके साथ में, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि मेरी मशीन, मेरी मिल बंद रहेगी। मैंने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की थी, समझे? सो नाउ इन दिस केस A is entitled to receive B by way of compensation what? The average amount of profit, average amount of profit which would have been made by working of the mill during the time that delivery of it was delayed. उस डिले के टाइम के लिए 5 दिन डिले हुआ, 5 days, 10 days, ड्यूरिंग दोज डेज आपका जो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो सकता था, यू कैन क्लेम दोज प्रॉफिट्स, यू कैन क्लेम दोज प्रॉफिट्स। समझे आप बात? बट नोट द लॉस सस्टेन्ड थ्रू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज नॉट नोन टू मी। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉस कर दिया, इट्स ओके, बट वेदर इट वॉज इन माई नॉलेज, इफ नॉट then second rule of 73 will not be applicable in this case. ठीक है? So whatever was in my knowledge, because you have informed me, this is part information is there to the extent of information. If you have informed me, my mill will be stopped. Okay, I am bound to compensate you for the average losses for the delayed time. 5 दिन का डिले, 10 days का डिले, एवरेज किस दिन 5,000 का लॉस हुआ, किस दिन 10 का, किसी का 7 होता, तो एवरेज लॉस आपका आई विल कंपनसेट यू, बट नॉट दी स्पेशल डैमेजेस। नहीं करेंगे? नहीं कर लेंगे? कर लेंगे? चलिए, गुड, बहुत क्यूट क्यूट से स्टूडेंट मिले हैं इस बार सब। हाँ जी करते हैं। अच्छा, जे
हाँ साहब अगेन, सो ए हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बी, किससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसने? बी के साथ। दिस इज ग्रीन कलर। अब सी, मैंने अभी कुछ लोगों को ट्रिक्स दिए हैं जो लोग निहायत ही आलस्य से भरे हुए हैं और कि भाई ठीक है इलस्ट्रेशन रट लेना, लेकिन अगर भूल करके भी लैंग्वेज रटनी शुरू कर दी इलस्ट्रेशन की तो कहीं के नहीं रहोगे आप। ये लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इलस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा टिपिकल है कि इंसान जो उसका मर्म है, जो उसका फैक्ट्स है, वहाँ तो पहुँच नहीं पाता है, वो कहीं और पहुँच जाता है। तो इसको अपने शब्दों में, अपने इन्फोग्राफिक्स बना करके ए प्लस बी का कॉन्ट्रैक्ट ये था, इस तरीके से नोट्स बनाइए इनका, और फिर अपने दिमाग में वैसी थोड़ी वीडियो क्लिप बनाएंगे आप लोग। इनकी लैंग्वेज को एक बार पढ़ करके समझ लीजिए बस। मैंने कोशिश किया इस तरह दिखाने की इस बार, इसीलिए इसमें कि हाउ यू शुड डू इट। ए का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। ए हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू सप्लाई बी विद 1000 tons ऑफ आयरन एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ए टन। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? बी के साथ, टू सप्लाई व्हाट? 1000 tons आयरन एट द रेट ऑफ 100। एक से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सप्लाई का, आई एम द ट्रेडर नाउ, आई एम बी नाउ, सॉरी ए, आई एम ए, बी से करा, नाउ कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द परचेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सेम एट द रेट ऑफ 80 रुपीज ए टन। सही है। टेलिंग सी दैट ही डज सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन। उसको बता दिया भाई कि 80 रुपए प्रति टन के हिसाब से आप मुझे 1000 टन आयरन दोगे, और देखो भैया मैं आपसे इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैंने अगले को देना है। ट्रेडर लोग ऐसी बात करते हैं ना भाई अगले को देना है, अगले पिछले अगली पार्टी को देना है, आपसे लेके मुझे आगे देना है, टाइम से दे देना ना। सही है। बिकॉज नाउ सेकेंड रूल, देर आर द एनफ मटेरियल इन दिस केस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड रूल इन द नॉलेज, इट इज इन द नॉलेज ऑफ। तो सी से लूंगा, ये हो गया खत्म। सी फेल्स टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद ए, नहीं की सप्लाई, हु कैन नॉट प्रोक्योर अदर आयरन एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिजाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। सी मस्ट पे टू ए 20,000 रुपीज, जो लॉस, जो उनका डिफरेंस हुआ 80 100 माइनस 80, 100 रुपए माइनस 80 रुपीज, 20 रुपीज का प्रॉफिट होता, 20 इंटू 1000 20,000 रुपए हो गया। तो मेरा लॉस 20,000 रुपए का, आपकी वजह से मेरा 20,000 का प्रॉफिट होने से रुक गया, एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो देयरफॉर सेकंड रूल ऑफ दिस विल बी एप्लीकेबल इन दिस। ठीक है। तो दिस इज योर सेक्शन 73 के जो 2 रूल्स हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। इसके अतिरिक्त जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं ये आप स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं आए फिर कोशिश करना, और जब लगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है देन आई एम अवेलेबल आपको समझाने के लिए यहाँ पर। ठीक है। हालांकि अब मेरे ख्याल से उतना टाइम लगेगा नहीं समझने के लिए, आपको समझना सबको चाहिए, आपको ये सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने पड़ेंगे आपको। डोंट मिस इवन सिंगल इलस्ट्रेशन इफ यू वांट टू डू 100%, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट में 100% क्वेश्चन सही करने, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे इस तरीके से आपको। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। देखिए नाउ ये है आपकी 73 की लैंग्वेज। हम यहां पर आ चुके हैं, दोनों रूल्स पढ़ लिए हम लोगों ने। लास्ट पार्ट क्या है? सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। ये जो लॉस होगा इसको आप पहले रूल से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो नेचुरली अरोज हुए वही मिलेंगे, कोई इनडायरेक्ट लॉस नहीं मिलेगा आपको, कोई उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको, कोई रिमोट नहीं मिलेंगे आपको। सही है। जैसे छोड़िए वो समझा चुका, लंबा खिंच जाएगा नेसेसरली। तो आई होप कि इट इज ओके नाउ। बढ़े आगे। नाउ जो सेकंड पैरा है इसका दैट इज सेम। प्लीज 73 का सेकंड पैरा पढ़िए आप, देखिए डायरेक्ट में अपने। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन
इसकी हेडिंग देखिए, ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अगर का ब्रीच होता है, व्हाट कुड बी दी, उसमें क्या कंपनसेशन कैसे मिलेगा आपको, पढ़ लीजिए, सेम है वैसे। When an obligation resembling those created by a contract has been incurred and has not been discharged. अब कुछ लोगों को हो सकता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े हैं, तो उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो प्लीज जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए। अभी दोबारा जब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा तब आपको दोबारा कनेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है। एनी पर्सन, आसान शब्दों में समझाता हूं आप लोगों को मैं, कि जब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, इनकी टेक्निकल हेडिंग क्या दी गई है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से रिजेंबल करती हैं, ऑल्दो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू ए माइनर सेक्शन 68, फाइंडर ऑफ गुड्स, इस तरीके की नॉन ग्रेचुअस एक्ट के परफॉर्मेंस के लिए जो सेक्शन 68 से लेकर 72 तक का चैप्टर है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल का। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मुझ पे थी लेकिन मैंने डिस्चार्ज नहीं की, तो जो पार्टी सफरर है उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा? आंसर इज दिस, द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट एज इफ सच पर्सन हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज, मीनिंग देयर बाय कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का जो ब्रीच होगा रिजल्ट विल बी सेम। उनको जो रिमेडी मिलेगी वो उसी रूल से मिलेगी, यानी कि ये 73 में हमने पढ़ा अभी, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, उस तरीके से आप समझ रहे हैं मत। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड द ब्रीच ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एज फॉर एज द रेमेडी इज कंसर्न। रेमेडी इज सेम इन बोथ केसेस। कर लेंगे आप, बढ़े आगे। नेक्स्ट, and this is very important for you and it comes in your prelims, many times questions have been asked from this line. In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed, please see, हालांकि कलर मैंने कर रखा है, इसको फिर भी डबल करता हूं। The means which existed of remedying the inconvenience caused by non performance of the contract must be taken into account. जब ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे हमने अभी सेशन पढ़े, शिप का था, बॉम्बे से कलकत्ता लाना था, तो वो कह रहे हैं जब आप कंपनसेशन के हम एस्टिमेट लगाएंगे आपको कितना लॉस मिलना चाहिए, तो आपके पास जो मींस थे कि जो इनकन्वीनियंस को कम कर सकते थे, जो वो आपको देखने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कुछ भी कहेंगे कि हमें 100 रुपए की चीज आपके मिलने वाली थी, हम यहां गए, हम टैक्सी से गए, वहां से गए, तो आप अननेसेसरी के एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप ऐसे मींस को देखेंगे आप कि जिससे आपके जो मिनिमाइज हो सकता था, लॉस ही नहीं हो सकता था। पढ़ लीजिए दोबारा। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मींस विच एग्जिस्टेड ऑफ रिमेडिंग द इनकन्वीनियंस, जो आपको इनकन्वीनियंस हुई किसकी वजह से? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उसको रिमेडी करने के लिए जो मीन्स थे, उसको कम करने के लिए, उसके जो दुख को, आपके जो प्रॉब्लम्स हुई, ट्रबल हुआ, उसको कम करने के लिए जो माध्यम उपस्थित थे उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? मैं रिपीट करूंगा अभी, रेज हैंड। नहीं आई बात समझ में? एक और, हाँ नहीं आई, नहीं आई बात ये। चलिए मैं समझाता हूं उसको। अभी हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था कि उसको ट्रबल एंड एक्सपेंसेस मिले थे, बस केवल ट्रबल। कौन सा था वो? इलस्ट्रेशन बी। वेरी गुड, आर यू श्योर? हाँ ये रहा, वेरी गुड। मैं इसी पे करता हूं। देखिए इसी से समझाता हूं आपको क्या है। ए हायर्स दिस शिप टू गो टू बॉम्बे एंड दे टेक्स इट ऑन बोर्ड फॉर द फर्स्ट ये कार्गो की जो कलकत्ता लाना था। ध्यान आया आपको? ये शॉर्ट में समझाता हूं। ए ने बी का शिप लिया कि भाई मेरा माल पड़ा हुआ है बॉम्बे में, और बॉम्बे से वो माल कहां पर आएगा? कलकत्ता में आएगा। बी ने अपना शिप नहीं भेजा बॉम्बे के लिए, मुझे वहां पर इक्वल फेयर्स पर जहाज मिल गया। यहीं पर वो बात छुपी हुई है।
अगर मैं बी, अगर मैं ए हूं, अब मैं सोचूं कि इसने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, अब मैं डिफरेंस लूंगा इससे, तो मैं एक काम करता हूं कि इसका तो मुझसे सेम प्राइस से मिल रहा है, उसको तो वो तो बच गया, मैं एक काम करता हूं इसका शिप लेता हूं, थोड़ा बढ़िया वाला है, डीलक्स है, कुछ अच्छी क्वालिटी इसका, भले ही मैं 150 रुपए में लूंगा इससे अब, एंड देन आई विल क्लेम डिफरेंस, क्योंकि ही इज बाउंड टू पे द डिफरेंस। तो दिस लाइन सजेस्ट कि नहीं, यू विल हैव टू सी द मीन्स एग्जिस्टेड टू रिमेडिंग दैट इनकन्वीनियंस। आप ऐसा नहीं कर सकते, इट विल बी सीन कि ऑन दैट डे कि कौन कौन से शिप्स किस किस रेट्स पर मिलने को तैयार थे। अगर आपने जानबूझ करके हायर रेट्स वाला हायर किया जस्ट टू क्लेम योर कंपनसेशन, तो आपको वो नहीं मिलेंगे। आपको यू विल हैव टू सी द मीन्स एग्जिस्टेड फॉर रिमेडिंग द इनकन्वीनियंस, जो आपको इनकन्वीनियंस हुई, जो आपको असुविधा हुई बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कम करने के लिए क्या क्या माध्यम उपस्थित थे, मीन्स एग्जिस्टेड थे, दोज विल बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग योर लॉस। इट इज नॉट एज इफ कि वॉट एवर यू विल क्लेम यू विल बी गिवन, नो। गॉट इट? अब तो समझ में आई बात है? हाँ जी, एनीवन, चलें, मतलब आगे बढ़े। सो दिस इज सेक्शन 73, एक्सप्लेनेशन हो गए, इलस्ट्रेशंस आ गए सब इस पे। तो दिस इज सेक्शन 73। नाउ समथिंग मोर इन दिस केस, एक लाइन लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेक्शन 73 incorporates the rule regarding damages which was laid in Hadley versus Baxendale in England. Hadley versus, इस केस को एकदम भूल जाइए आप, अगर आप फेल होना चाहते हैं तब, नहीं तो याद कर लीजिए। हेडली वर्सेस बैक्सनडेल, जो 73 में रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वो रूल्स कहां से लिए गए, ओरिजिन कहां पर है? वो ओरिजिन इस केस में हेडले वर्सेस बैक्सनडेल में उन रूल्स को प्रतिपादित किया गया, एक्सपाउंड किया गया, समझाया गया, दिए गए, एंड दोज रूल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ सेक्शन 73। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। सही है? नाउ प्लीज राइट डाउन, out of following cases, which are related, out of following cases, sorry, in which out of following cases, ऐसे कीजिए, in which out of following cases special damages were awarded, ठीक है। एंड सेकेंड इसी लैंग्वेज में, इन विच आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस स्पेशल डैमेजेस वर नॉट अवॉर्डेड, सही है। दिस इज योर होमवर्क। जो केस लॉज हैं, प्रीलिम्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 3-4 केसेस की लिस्ट दे देंगे, इनमें से किस में स्पेशल डैमेजेस दिए गए थे और किस में नहीं दिए गए थे। तो जो लोग हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में, वेदर आप ये क्लासरूम कोचिंग हो गई, ऑनलाइन हो गई, उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास अलग से लूंगा फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, और मैं ऑल केसेस, मैक्सिमम केसेस विल बी डेल्ट इन डिटेल, बिकॉज यहाँ पर अभी प्रीलिम्स पर ध्यान है अभी मेरा। तो आप केवल अभी प्रीलिम्स में जितना मैंने समझा दिया ये, इसके अतिरिक्त आपको ये लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी एट योर ओन लेवल कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो 73 ओवर्स हेयर राइट नाउ कर लेंगे आप। मैं इसमें हेडले, बैक्सनडेल और पूरा विक्टोरिया, सिम्पसन और बाकी जो केसेस हैं, 1-1.5 घंटे क्लास अलग से होगी, आई विल बी डीलिंग विद दैट, लेकिन दैट विल बी ओनली फॉर द फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू सेक्शन 74। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ इट इज सो प्लीज़ आई विल नीड योर कमेंट। आपका कमेंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इनके नोट्स हम लोगों ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बहुत छोटा सा कोर्स क्रिएट किया है, उसका बुक समझ लीजिए आप एक तरीके से।
यू कैन यूज़ दैट एज ए बुक। उसमें क्या मिलेगा, हमारे ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, इन सभी के नोट्स की डाउनलोडेबल कॉपी मिलेगी आपको। नंबर 2, वहाँ पर आपको वन लाइनर या और भी डिफरेंट तरीके के नोट्स हो सकते हैं, वो हम आपको अपलोड करते रहेंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको मिलेगा जो यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐप पर आपको MCQ सॉल्व करने के लिए एक टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें आपको प्रोविजन बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे BSA के, उसमें आपको एंटायर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, तो जिनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो वो कोर्स बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से देख लेना आप कितने की होगी, लगभग एक जैसे बुक की कॉस्ट होती है उतनी ही कॉस्ट होगी लगभग। तो दैट्स यू शुड हैव, मेरा यही सजेशन है। तो विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस क्लास। एंड मैं फिर आपसे वही कहूँगा, देखिए आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। और आपको जो टेक्निक सिखाई गई है, टेक्निक में मैंने बहुत समझाया आपको कि रिवीजन बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और इस चैनल की जो अदर प्लेलिस्ट हैं उनको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे आप।